right now we were listening to the life stories of a lion. Now we are going to listen to how art, VFX, creates these lions on screen. You know, I was speaking to somebody the other day, and वो बता रहे थे कि आप लोग जो स्क्रीन में हीरोज को करते हुए देखते हो ना, अगर हीरोज वास्तव में करने जाएं तो पहली बार में मर जाएंगे, लेकिन स्क्रीन पे उनको प्रैक्टिकली कैसे करवाना, उनको कैसे हीरो बनाना, जो इम्पॉसिबल चीजें हैं वो कैसे पॉसिबल करना थ्रू टेक्नोलॉजी, ये काम वीएफएक्स करता है. टुडे द होल वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट depends a lot on VFX. And we have one of the pioneers, one huge personality of VFX today with us in this session. So, may I request you to put the spotlight on Mangesh? Hello everyone. Hi Mangesh. Good to Hello, sir. hear. How are we doing? We are doing very, very well. We are super excited with the way things have been going from the morning. Yeah. It has been 3 hugely inspirational sessions. And now we are here to pick into your brains and learn a lot from you. Of course, I'm all set for that. So please go ahead. I'm all there. No problem. Brilliant. Mangesh, what you are doing is so different. Yes. The VFX. Yes. VFX का full form क्या है? सर VFX मतलब विजुअल इफेक्ट्स, इसके अलावा और कुछ है नहीं. तो विजुअल इफेक्ट्स बोलते बोलते इट कम, आई मीन इट्स शोइंग टू VFX, दैट्स इट, नथिंग फैंसी इनटू इट. जो एफएक्स मतलब वो इफेक्ट का थोड़ा एफएक्स बन गया क्या? हाँ जी, एब्सोल्युटली. ओके. एब्सोल्युटली. So you make the impossible possible. Yes. है ना? Of course. Yes. And, basically when it comes to making impossible to possible, it's basically a demand of the people. They need a visual treat, like we give a visual treat to our mouth by eating a good food. We give a visual treat to our ears by listening good music. What about our eyes? So there where a professional like me, we come in picture, like, okay, we want a visual treat, right? We want Shah Rukh Khan to look as charming as he was like 20 years back, you know, or probably some kind of fighting sequence which fascinates you. Bhai, ye kaise hua? Right? So what we do is we actually create a dreams. So you make Shah Rukh Khan as good as you are. Yeah. Mangesh, you and me are wearing the same kind of a shirt. Only thing, I have a coat. Yes. I also love this Chinese collar. Yeah. And sleeves are also rolled up. The only thing is I am covered a little more, and you are uncovered a little. Yeah. It's very beautiful. I think we have many things common. Of course. I mean, this makes it little relaxed. Yeah. Tell me, Mangesh, when we spoke yesterday, जब कल अपनी बात हुई थी, Absolutely. उसके बाद बहुत अच्छे से समझ में आई कि आप एक बहुत छोटे से शहर से हो. हाँ जी. जब सबसे पहले आप पूना आए. हाँ जी. महाराष्ट्र में अपने यहाँ ऐसा होता है कि अगर कोई छोटा सा शहर से है तो उनकी एक ड्रीम सिटी होती है पूना. Yes. और जो लोग पूना में रहते हैं उनका ड्रीम सिटी होता है बैंगलोर या फिर बॉम्बे. Yeah, that's correct. That's correct. आप जब एक छोटे से शहर से पूना आए तो was it easy? ये आसान चीज था पूना में सेटल होना? आपको सपोर्ट मिला कि आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ा? See, कैसा है कि पूना was absolutely a dream for me. कि मुझे अगर कुछ करना है तो मेरे छोटे से शहर में ये पॉसिबल नहीं था. Because since the day one I was thinking कि यार नहीं, कुछ हटके करना है लाइफ में, कुछ हटके करना है. Even if कुछ ड्राइंग या स्कूल में बताया जाता था कि आपको ड्राइंग निकालना है, आपको, तो I used to create like some kind of alien drawings or fighter pilots drawings, हटके. भले zero मिले तो चलेगा. I am absolutely okay with it, but I want to do something. So I begged my parents कि I want to go to Pune. I want to learn. I want to have that culture. I want that information which I'm lacking in this city. So my parents was like, okay, fair enough. If you would like to go,
no doubt they have instructed me at tons of instructions कि वहाँ पे जाके ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, and all those things like every parents give to their kids. So when I came in Pune, I was just in 9th standard. It's not like that after my graduation or after my 12th I came. No, it was 9th standard. So it was really difficult for me at the very first instance because my language belongs to like since I belongs to a small town and Pune's Marathi was like quite polished and mine was like quite rough, you know. So I was being bullied by the people, by my fellow colleagues, fellow friends कि यार ये ऐसे कैसे बात कर रहा है. So वो काफी hurdles थे मेरे लाइफ में. But that gave me one motivation that I need to stand next to them. So I started working on my own language. I started working on my own personality, the knowledge. See, being from a small town boy, मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि after graduation, I mean, in the graduation, I need to be a doctor or an engineer, or probably a teacher if you're not willing to perceive maths or science teaching. But I never wanted that. And I happened to see here there are a lot of things which was coming. And since being in a 90s kid, that was the era where the technology was growing. It was like, you know, and I wanted to be a part or a kind of a pioneer to start with something different in this technology. So I started learning things. I worked day and night to have my computer. So I worked. I was working with newspapers, selling newspaper, you know, and collecting money not for an enjoyment, but to have a PC on my desk so that I can download some kind of softwares. I can do a research on that. So these kind of things I started working at actual, and this is how the things went on. But yeah, initial struggle was really hard being as a small town boy and coming in a sub metro or metro. So yes, so that was a really hard one. But now since I am there in Pune, in Mumbai, then the next dream was to go to Hollywood and work out there. So yeah, that was a kind of journey which I did, and again I have got my goal. So the journey is on, and the learning curves is all there. मंगेश एक बात बताओ, हाँ जी, जब थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब अगर आप गांव से हो, हाँ जी, छोटे से शहर से हो और आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, हाँ जी, मराठी वो प्योर मराठी नहीं है, हाँ जी, मतलब वो ब्राह्मण वाली मराठी नहीं है, थोड़ी गांव की मराठी है, थोड़ा किसान वाली मराठी है, हाँ 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 तो और लोग थोड़ा अगर आपको साइड में रखते थे कि यार ये हाँ हमारा वाला नहीं है काइंड्स, तो हाँ. तुम्हें गुस्सा आता था, रोना आता था, कि क्या होता था उस समय? सर उस टाइम दोनों होता था. मतलब गुस्सा भी आता था यार, ये मुझे ग्रुप में क्यों नहीं ले रहे हैं, हाँ, मतलब मुझे स्पोर्ट्स में क्यों नहीं ले रहे हैं, मुझे इन लोगों के साथ जो टिफिन खाना है वो मैं क्यों नहीं खा पा रहा हूँ. बिकॉज सीन ऐसा था कि सारा एडमिशन होने के बाद आई वाज द लास्ट पर्सन जिसको एडमिशन मिला था. ठीक है, सो वो बहुत था. बट आई वाज थिंकिंग कि यार चलो अच्छा है, आई एम गेटिंग माय मी टाइम. तो वो जो अकेलापन था, आई हैव मेड माई सेल्फ टू रीड बुक्स, आई मेड माई सेल्फ टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, आई मेड माई सेल्फ टू थिंक, जो हमको सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता था. एंड देयर इज वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिसनिंग. कि वो लोग कैसे बात कर रहे हैं, वो लोग क्या शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. मतलब यहाँ अज्यूमिंग कि सिंस मैं नया था तो मुझे पता नहीं कि पुणे में कौन सी चीजें हैं देखने लायक, जैसे राजा केरकर म्यूजियम विच इज गुड फॉर द किड्स. तो मैं सुनता था कि हाँ कोई बोलता था कि नहीं यार आज वीकेंड पे मैं मेरे डैड मॉम डैड के साथ मैं राजा केरकर म्यूजियम गया, मैं शनिवार वाड़ा गया. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन. शायद मैं वो ग्रुप में रहता तो ये बात मुझे पता नहीं चलती थी. तो आई मेड अप माई सेल्फ टू लिसन, and that's a seriously very good art of listening. So I listened, I started exploring. चलो आज राजा केलकर म्यूजियम जाते हैं, आज शनिवारवाड़ा जाते हैं. तो शनिवारवाड़ा में जैसे वो एक इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाया हुआ है मेटल पे, शायद ही वो कोई पढ़ता है. I made it a point that I read that. इस वजह से वो एक
छोटा मोटा नॉलेज जो बिट्स एंड पीसेस मिलते थे was good. So I thanks to those guys who kept me aside. Like thank you. मतलब वो जो एक टाइम था, हाँ जी. समय ये एक पॉसिबिलिटी थी कि पुअर मी, सेल्फ सिंपैथी, और अपना एक वो सिंकारा करके हमदर्द का एक टॉनिक आता था हाँ. कि ना, कुछ पंक्तियां ऐसी होती थी, ये बेचारा काम के हाँ, लोग, right, right. इसको चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। तो उसमें ना दिखाते थे कि कोई बड़ा बोझ लेके इंसान चल रहा है। Very true. जब जब अपने को कोई अलग रखता है, जब कोई अपने को इग्नोर करता है, तो एक जो विकल्प, एक जो ऑप्शन होता है, वो ये होता है कि मैं बेचारा हूँ, Yes. मैं मतलब लाइफ अनफेयर है, लोग ऐसे क्यों हैं, Right. और इंसान फिर सैड हो जाता है और उसके अपने अंदर जो जोश होता है उसको वो थोड़ा क्षीण कर लेता है, मतलब थोड़ा वीक कर लेता है। Very true. Absolutely. आपने जो किया, आपने वो चीज और वो टाइम को अपने आप को डेवलप करने में और सीखने में लगा दिया। Yes, actually. और सीखने के लिए आपने पढ़ा, यू रेड, Yes. आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया, जैसे आपने वहां पे बोर्ड को ऑब्जर्व किया, और Yes. आपने सुना। Absolutely. Yes. और तो वो पुअर मी का स्कोप नहीं रखा, इसके लिए Yeah. आपने अपने आप को बहुत डेवलप कर लिया, और माशाल्लाह आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो। Thank you, sir. हमारे यहाँ मैं बहुत अच्छा एक रूल बताता हूँ आपको। हाँ जी. भी कोई किसी को बोलता है यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, Mhm. थैंक यू के बाद में सेम टू यू बोलना बहुत जरूरी है। Oh, yeah, of course. Same to you. I mean, sir, to be very honest, जैसे आपने बताया कि कल मुझे बताया गया था कि कल आपके साथ मेरा बात होने वाला था, बात होने वाला है। हाँ तो ठीक है, मैंने भी थोड़ा होमवर्क किया कि भाई देखें कौन है। तो आई हाँ सॉ योर पर्सनालिटी हाँ एंड जब आपका कॉल आया, आई वाज लाइक, इज दिस द सेम पर्सन टू whom आई एम टॉकिंग टू? नो भाई, कुछ तो गड़बड़ है, राइट? मतलब सी, आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट योरसेल्फ, ऑफ कोर्स नॉट, हाँ बट या दैट वाज द बैक ऑफ माय माइंड। आई वाज लाइक, हाँ यार, कोई हेलो बेटा, हाउ आर यू, इट्स लाइक दिस, बट द एनर्जी दैट यू शोड मी, आई वाज लाइक, एंड अ कंप्लीट एग्जॉस्टिव डे। आपका फोन आने से 10 मिनट पहले मैं घर पे पहुंचा था, हाँ एंड टेक माय वर्ड, I was in my office by latest 8 o'clock in the morning, हाँ and there was a delivery session which is happening. I was talking to people. People are coming with me with their problems and all those things. And हाँ I was completely exhausted. And I, यार चलो मतलब बात कर लेते हैं. And the moment you say, hello, how are you? Please treat me as your friend. I was like, with your voice, I was like, भाई done है अपन. कोई टेंशन नहीं है लाइफ में. So आप जो स्मार्ट बोल रहे हो ना, तो उसके पीछे का ये पूरा हिस्ट्री है. So थैंक यू। cheers to that. Cheers to that. आई एक्सेप्ट डिफीट, मैं हार मान गया, आप जीत गए। नहीं नहीं. बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। एंड सर, एडिंग टू इट वन, हाँ आपने जैसे अभी को सिंकारा का एड बताया था, हाँ एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेल टू पीपल, और मैं मेरे काफी दोस्तों को भी बताता हूँ. हाँ जैसे यू हैपन टू सी देयर इज माय इंज्यूर्ड थंब, हाँ ओके, इट्स ऑल ओके. हाँ मेरा थंब इंजुरी हुआ, पब्लिक बोल रहा है भाई थोड़ा अपने आप पे तरस खा, मत जा ऑफिस या बाइक मत चला. मतलब भाई मुझे ना तरस नहीं खाना है. तरस खा खा के पब्लिक मोटा हो जाता है. तो तरस इज लाइक अ रसगुल्ला और अ शुगर. सो मत खाओ तरस अपने आप पे. अ, राइट? यू हैव गॉट अ वेरी लिमिटेड टाइम. इट्स जस्ट वन इंजरी एंड टेक इट अवे. बट हाँ, डोंट गिव योर ब्रेन, वो न्यूरॉन्स को वहां पे पहुंचने मत दो. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू कैन डू थिंग्स इन योर लाइफ. हम्म। सो मनमीत, थोड़ा काम के बारे में बात करें। या, ऑफ कोर्स, प्लीज सर, बाय ऑल मींस. यू हैव डन सम वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, यस सर. इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स फॉर मार्वल स्टूडियोज। या. कुछ बताइए ना कि व्हाट डिड यू फील, हाउ डू दे अप्रोच अ प्रोजेक्ट, what is required to excel, so something around your work if you can share. ओके. बेसिकली आई स्टार्टेड माय, मतलब आपके क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आई हैव टू गो लिटिल बिट बैक, okay, in my career. So I started as a intern, of course. सबसे पहले तो जब आप एज इंटर्न करके जाते हैं, तो आपको एक छोटा मोटा काम दिया जाता है कि हाँ यार ये इतना कर, एंड जस्ट हाँ हाँ डू हाँ इट.
हाँ. So वहां से जो एक जर्नी चालू हुआ as an intern, then you reach to an artist level, and artist से आप senior artist lead बनते हो. So when a big project come in my team, in my company previously, so everyone was like quite occupied. And ऐसे ही मेरे सुपरवाइजर ने देखा, मेरे हेड ने देखा कि ये बंदा कुछ काम नहीं कर रहा है, तो व्हाई नॉट टू टेस्ट हिम. ये बोलता तो है कि हाँ ये हो सकता है, या ये मैं कर सकता हूँ, या ये मैं करना चाहता हूँ. लेट्स टेस्ट दिस गाय. फेयर इनफ. अभी बोलने के लिए, बोलना और करना, दैट आई मीन देयर आर टू एंड्स ऑफ अ थ्रेड. तो भाई अपन ने कमिटमेंट तो दे दिया कि हाँ आई कैन डू दिस थिंग. When it came actually on my desk, I was like zapped for a movement, because that was quite a big project, a prestigious project, and the task which was given to me was quite difficult from my perspective. Maybe it's easy for a lead or a supervisor, but at that time it was like little difficult. So challenge, chalo le lete hain. They gave me a stipulated time that you need to finish this thing in say 5 days. I was like, okay, 5 दिन है मेरे पास, do it, let's plan it. So जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने तब तक जमा करके रखा था was there in my vault. So एक एक वॉल्ट के दरवाजे खुलना चालू हुआ, and I was going the holistic way कि हाँ यार आपको इसके बाद आपको ये करना है, फिर ये करना है, then you achieve. So I started achieving the milestone. But since वो नहीं हो पा रहा था मुझे मेरे से कि हाँ यार, and I had a lot of fight with my leads. They were like तू नहीं कर सकता है यार, तेरे को ये करना है, ये ऐसे कर वैसे कर. अगर ठीक है यार, I mean मैंने 3 दिन मैंने स्पेंड किए आप लोगों ने जैसे बताया. I mean I failed in that. Okay, done. Now give me a liberty, do it my way. So let's do it. So they're like, are you confident? Because हम लोगों से नहीं हुआ, तू कैसे कर पाएगा? यार अगर मुझे 50% भी अगर मेरे को सक्सेस मिलता है, तो रेस्ट 50% वी कैन डाइजेस्ट विद द रेस्ट ऑफ द टीम. तब तक कोई ना कोई तो डेफिनेटली खाली हो जाएगा. लाइक ओके, लाइक चल ठीक है, तू बोल रहा है तो करते हैं. सो दे हैव देयर प्लान बी. फिर इससे नहीं हुआ तो किसी और से करवा लेंगे. सो नॉट अ बिग डील. I started thinking कि भाई ये कैसा करे, and most of the people they laugh, like thinking. So if I want to think, I use my think tank, which is washroom. That's my think tank. Yeah. So I just go there, 5 minute बैठा यार क्या करें, and like realize let's do this. So I started working the way I wanted the process, and actually I was going out of the box at that time. 24 hours घर पे मैंने फोन किया कि please do not expect me next 24 hours in home. मेरे को ये करना है. It was like भाई क्या हो गया तेरे को and all. So done. Wow. Finally I showed them, see this is the thing what you wanted. So उन्होंने देखा, लेफ्ट एंड राइट से देखा, फ्रेम स्लो करके देखा, फास्ट करके देखा, it was done. They took up a risk to send it to the client, and client was like, done, okay. So I was like, fantastic, I won. So ऐसे करते करते फिर मेरे टीम का, मेरे मैनेजर्स का एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना चालू हुआ. हाँ यार ये कर सकता है. Eventually getting the big project, people started, अच्छा ये पब्लिक को मतलब आजू बाजू फेलो कलीग्स को भी ये हेल्प कर रहा है, why don't we give him an opportunity to handle the team. तो एक छोटा सा टीम दिया गया, then फिर एक डिपार्टमेंट दिया गया. So ये तब तक था जब तक कोई ब्लॉकबस्टर नहीं था, because I was not in the limelight. But when Marvel came in a picture, so those guys were like हाँ यार हमारे पास मतलब we all member were sitting on a desk like ये करना है, कैसे करना है. So I came up with a plan. So boss, this is my plan. Let's execute that. So done. So उन्होंने मुझे पूछा what's your plan B? मतलब sorry boss, मैं plan B नहीं रखता हूँ. Because if I start using plan B, मेरा 20% of focus मेरा plan B में चले जाएगा. So I want to focus 100% on plan A.
आपको प्लान बी बनाना है, आप प्लीज बनाओ. अगर मंगेश फेल होता है कहीं, all okay. I'm fairly all okay because it's a business. No one wants to fail in there. So plan B आप लोग बनाओ. Plan A मेरा ready. I worked on plan A. Public liked it. Even the client liked it. So we executed, and this is how the big project starts coming in my basket. And I was getting those things on board. So look, this is how the blockbuster like Marvel, which I've worked on quite a blockbusters movies for Marvels, for Disney's when I was back there in RNW. So this is how it starts coming. Wow. Two things from what you shared. Mm-hmm. One, ये जो वॉशरूम की आप बात बता रहे थे ना, उसीलिए उस जगह को शौचालय बोलते हैं. So there you are. हिम रहता है वहां हिमालय, और जहां इंसान अच्छे से सोच सकता है उसको शौचालय, मतलब नाम कुछ सोच के रखा है उस जगह का. हाँ. मतलब, I know people find it weird, but if I want to think, I do two things in my life. हाँ. First is I go to my think tank हाँ. and I think. And second, अगर मेरे पास time है तो I just sit on my bike and I just ride the bike. That's it. Oh, brilliant. That's it. Because focus होता है, आपको मतलब एक ताजी हवा मिलती है. You get out from that zone, that compound से आप बाहर निकलते हो. हाँ. You see people, come back, go ahead with it. Awesome. Yeah. You said something very interesting, very powerful, very very powerful. Yeah. What you said is, I called home, घर फोन किया और बोला कि 24 घंटे के लिए मेरे को एक्सपेक्ट मत करो. Yeah. ये जो भक्ति होती है या ये जो जुनून होता है कि यार ये काम करना है और उसके लिए नींद, चैन, खाना पीना सबको बाजू में रखो. Right. इसके बारे में कुछ बोलो ना. सर, एक्चुअली मेरे पे एक इन्फ्लुएंस है. हाँ. About from my father, from my grandfather. My father, he is like, मैंने उनको देखा हुआ है, एक वो जुनून देखा हुआ है उनमें कि करना है तो बस करना है. That's it. Right? अगर मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में तो अपने आप पे तरस मत खाओ कि नहीं यार मुझे सोना है, मुझे खाना खाना है. No doubt, it's really important. You need to have a sound sleep. You need to have a good food. You need to have a little chicky-micky breaks, which helps you in thinking. You know. But एक टाइम ऐसा आता है कि आपको ये सारी चीजें वो आपको बाजू में रखनी पड़ती है. You need to gather that energy in you. You know. So once you gather, बाद में आपको नहीं पता चलता कि क्या टाइम हुआ है कि आपके आगे पीछे कौन है या क्या करना है. I always see my fellow soldiers. जो soldiers जो है, मतलब मैंने सिर्फ उनको 24 घंटा बोला है. Soldiers बोलते हैं बस 24 months मुझे expect मत करो यार. Right? So यार मैं तो सिर्फ 24 घंटे मांग रहा हूँ मेरे लाइफ में से. Wow, brilliant. So, and honestly, my main target, my main aim is to go to Army and Air Force. But somehow reason it didn't happen where चलो यार वो जोश है वो जुनून है यार यहाँ पे बिता देते हैं. Big deal. So that thing is there. So that provokes me to do all these things. Exceptional. I have a few friends in the army, and one of them is a colonel, Colonel Parag Modak. Wow. Right now, he is on the front. He has personally encountered terrorists in Kupwara district in Jammu and Kashmir. Fortunately, he is a citizen from Pune. Oh. हाँ, तो अगली बार जब भी पराग आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा एक बार आपसे उनकी मुलाकात कराने की. Of course, of course. In fact, I was in an army school. I did my army school from Bhosla military. Okay. I हाँ, तो वो एक influence है थोड़ा बहुत. So I'm keeping that spark. Brilliant, brilliant. Maybe कुछ करेंगे armed forces के लिए कुछ करेंगे अपन. I'm all there. I'm seriously all there. You know, I had the opportunity of addressing 1,200 Jawans in Hyderabad a few months ago. Oh wow. There was some issue which they wanted me to solve in the life of those Jawans. Mm-hmm. इतना मजा आया.
मंगेश एम्प्टी हॉल था, हाँ हाँ 11 बजे मेरा सेशन चालू होने वाला था, 11 से 12:30 का टाइम था. ग्रेट ओके 11:57 the hall was empty. 11:58 the hall was full. मतलब मैं पीठ पीछे करके ऑर्गेनाइजर से बात कर रहा हूँ, 1100 लोग हैं, राइट टाइमिंग, एंड बात कंप्लीट हुई, पीछे घूमा तो फुल. यार ये कहां से आए? 1 मिनट में 1100 लोग बैठ भी गए, आवाज भी नहीं हुई. मतलब एग्जैक्टली आई वाज सो इंस्पायर्ड कि कमाल हो गया. एंड आई रियली बिलीव दैट जो आपने बात बोली ना अभी, बहुत अच्छी बात बोली कि मैंने 24 घंटे मांगे थे और वो लोग तो 24-24 महीनों दूर रहते हैं. एग्जैक्टली तो कभी अगर जिंदगी में एक आर्मी का दोस्त हुआ ना, तो इंसान फिर वो मायूस नहीं हो सकता, वो अपने आप को लो नहीं समझ सकता, नो नो नेवर नेवर है ना. नेवर नेवर या फिर मंगेश जैसा दोस्त मिल जाए तो भी चलेगा. सर आप बढ़ा रहे हो बट आई एम जस्ट नॉर्मल अच्छा मंगेश, व्हेन यू डू वर्क, हाँ देयर इज सम वर्क जो कि चल जाता है, हम्म एंड देयर आर सम हु सेज we have to go to the next level. या We have to break through the existing limits. यस You would have met different kinds of people, different kind of clients. ट्रू ट्रू एब्सोल्युटली So can you tell us some stories from your life experiences of dealing with clients or a project, and what did you learn or what did you observe and what amazed you? तो कुछ बताओ ना. So that's a really interesting stories because there are millions of stories but मेरे साथ अभी जो ऑफ लेटली हुआ मैं वो सबसे पहले शेयर करना चाहूंगा. हाँ. First thing first, so I was there in China for 4 years down the line, right? Okay. So चाइना में लैंग्वेज बैरियर तो भरसक सा है. आई मीन आप जो इंग्लिश बात कर रहे हो वो उनके लिए कुछ भी नहीं है. ठीक है. Hmm. एंड डिस्पाइट ऑफ गिविंग मी अ ट्रांसलेटर, तो शी इज अ चाइनीज वुमन, राइट? Hmm. जो मैं इंग्लिश बात कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली ट्रांसलेट कर रही है, कर पा रही है, मुझे नहीं पता था. Hmm. So and Chinese people are उनका टेंडेंसी है that they are pretty uh, वर्कोहोलिक काइंड ऑफ पीपल. Correct. अचीव करना है तो वो करना है. हाँ. कैसे, दैट इज योर वे आउट, नन हाँ. ऑफ देयर बिजनेस. सो आई वाज हैविंग अ क्विक मीटिंग विद अ प्रोजेक्ट, तो जहाँ पे मंकी किंग करके एक प्रोजेक्ट था. हाँ. 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 मंकी किंग मतलब जहाँ पे अपने आप जैसे हनुमान है तो हर दूसरा चैनल हनुमान, और बहुत सारे वर्जन्स निकले हुए हैं, तो वैसे भी एक मंकी किंग का निकला हुआ था बट फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस प्रोड्यूसर ऑफ चाइना. अच्छा. सो वो लोग आए एंड हमारा मीटिंग हुआ. दे गेव अस अ गुड टाइमिंग कि हाँ यार ये टाइम में हमको वो पूरा एग्जीक्यूट करना है. Hmm. आई वाज लाइक फेयर इनफ. I don't know what went wrong with the producer. He was like, there is one event which is coming and we want to broadcast our show in that festival. Hmm. And he literally took out a month from me. तो जहां पे हमको एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर बिड किया था कि इसको हमको 6 महीने लगना है. Hmm. एंड ही स्नैच्ड आउट लिटरली 30 days फ्रॉम मी. पूरा एक महीना मेरे से ले लिया उन्होंने. सो आई वाज लाइक भाई अभी कैसे करेगा. देयर वाज लाइक पूरा प्लान रेडी है मेरे पास एंड व्हाट टू डू. सो डन. अभी करना तो है हाउ. सो एवरीवन सेज कि हम लोग ऐसे करके देखते हैं तो हम लोग प्रोबेबली 5 दिन रिड्यूस कर पाएंगे. वो मेथड यूज करते हैं तो प्रोबेबली 10 दिन यूटिलाइज कर पाएंगे. एंड आई वाज स्पीकिंग नथिंग लाइक चलो यार तुम लोग बोलो, लेट मी अंडरस्टैंड एंड लेट मी सम अप एंड रीच टू अ गोल्डन मीन कि बॉस ये हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. बिकॉज आई बिलीव इन यस और नो कि करना है कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. फेयर इनफ. Everyone was speaking. There was a complete day out brainstorming was happening. So couple of discussions, coffees, teas हो गया. Finally I land up and everyone was like speaking. I was getting bored. I was just playing a game on my mobile. है चलो यार ये बहुत हो गया, अपन अपना मोबाइल पे गेम खेलना चालू करते हैं. When I was playing a game, I realized कि हाँ यार इसमें 24 FPS रेंडर होता है और प्रोडक्शन में कैसे होता है कि almost 40% of your work is your render time, Hmm. which is the machine time. 24 FPS पे अगर मुझे कुछ करना है तो रेंडर के लिए मुझे राह देखनी पड़ती है कि हाँ यार ये रेंडर हुआ है नहीं हुआ है.
Like, why not to borrow a technology from a gaming industry and get that thing on board and plug into our own pipeline? So when I told them, boss, let's do this thing. ये बहुत हो गया, ये पाइपलाइन को शॉर्ट करना, 10 लोगों को बिठाना है और एक टास्क करना है. So इंग्लिश में फ्रेज है, too many cooks spoil the food. Yeah. So I told them, भाई ये ऐसा करना है हमें. So everybody was thinking, but it's a gaming technology. How are we going to match up? So another day we had a word with the stalwarts in the gaming industry and game developers. तो उनको भी बुलाया, वहां पे on board लिया. We had a discussion. We land up in a situation. Yes, this we can do it. Everybody was like, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों करना है? So वो negativity जो होता है ना, कोई चीज अगर नई चीज अगर कोई करने की कोशिश करता है, तो there are a lot of negativity comes in. इवन मिस्टर स्टीव जॉब जब उन्होंने एप्पल चालू करने की बात करी थी, तो पब्लिक सेज व्हाट एप्पल है यार, कुछ तो और नाम रखो, व्हाई एप्पल? बट नाउ एप्पल इज एप्पल. सो देयर आर पीपल हु विल स्टार्ट सेंडिंग नेगेटिव थिंग्स, और वो जरूरी है फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई कॉल देम एज अ स्पीड ब्रेकर्स. आप फुल स्विंग में जा रहे हो जहां पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, देयर इज चांस ऑफ एन एक्सीडेंट. But these people are speed breakers. There you need to apply brake and think कि क्या होने वाला है. Think left and right. Beautiful. हाँ. So चलो ठीक है यार, उनकी भी मान लेते हैं बात. But I was stubborn at my point of instance कि मेरे को ये करना है and I'm gonna borrow technology from here. So people gave up. भाई तेरे को जो मचाना है मचा, but ये प्रोजेक्ट खत्म कर. It's like okay. People started working. कुछ नए ट्रेनिंग की जरूरत थी. I myself learned new tools, new techniques, and we delivered it. Finally, the producer threw a biggest party in the town कि भाई ये done हो गया है. I was like, dude, होता है. Think out of the box. So this was one story I would like to share, and there are many more. There's a small thing I would like to share. When I came in the industry, when a position given to me कि हाँ भाई आज से तू लीड है, तू 10 लोगों को तू हैंडल कर रहा है, ये तेरी टीम है. उसमें there was one senior person, ठीक है. I was around like what 24 and he might be around like 34 plus. JJ pass out, a most respectable person in the team, जिनको कोई मना नहीं करता था. तो मैं कुछ प्लान के साथ उनके सामने जाता था कि सर आज ये हमारा प्लान ए है, आप प्लान ए टेक्निक यूज करें. तो सर को पता नहीं, मतलब आई गेट रिस्पेक्ट दैट पर्सन. उनका एक ईगो आ जाता था बीच में कि यार ये कल का आया हुआ मुझे मुझे क्यों सिखा रहा है, मैं प्लान बी करता हूँ. एक बार हो गया, 2 बार हो गया. आई वाज लाइक फॉलिंग ऑन माय फेस कि यार इनको मैं बताऊं कैसे, मैं समझाऊं कैसे इनको. सो ही वाज, चलो यार लेट्स, बहुत हो गया. समझाया कि सर आप प्लीज ये करें ताकि आगे वाले डिपार्टमेंट को तकलीफ ना हो. He was like, मैं हूँ, ठीक है. नेक्स्ट टाइम, द नेक्स्ट डे, आई स्टार्टेड गिविंग हिम द प्लान बी कि सर आप प्लान बी करें. तो वो तो प्लान ए करने वाले हैं जो मुझे चाहिए. तो भाई सर अपने प्लान बी कर रहे हैं, मैंने उनको प्लान बी बताया हुआ है, सर प्लान ए से कर रहे हैं. ही इज हैप्पी, आई एम हैप्पी. मैंने उनको कोई ईगो हर्ट नहीं किया, बट मेरा भी सॉल्व हो गया है यार. तो द मैटर ऑफ फैक्ट इज, जो बंदा मेरे साथ या आपके साथ काम कर रहा है, रिस्पेक्ट हिज वर्क. भले वो गलत काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं. Wow, very रिस्पेक्ट व्हाट ही इज डूइंग एंड देन पुट फॉरवर्ड योर थिंग्स. तो लिसन, expert, respect their work. Beautiful. वो हो जाता है. Very deep. So these are the few stories which happen, and there are millions of it. Mangesh, like I mentioned yesterday, I'm good friends with Jayesh. Yeah. Sometime. And I had interacted with a few more people in the VFX industry very beautifully. एक दर्द जो होता है वो इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करता है या 5-7 साल का ही एक्सपीरियंस है, उनका ये होता है कि हमारे इंडस्ट्री में भी लाइक एनी कॉर्पोरेट देयर इज पॉलिटिक्स. मैं काम करूंगा, मेरा सीनियर शायद बताएगा कि उसका आइडिया है, वो क्रेडिट लेके चला जाएगा और मैं गुमनाम रह जाता हूँ. मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सुबह से रात तक काम करता हूँ,
वो सुबह आएंगे, एक अननेसेसरी नॉट रिक्वायर्ड चेंज करेंगे, लेकिन बोलेंगे अब मैंने डिसीजन ले लिया, तुम जाओ काम करने के लिए। फॉर द सेक ऑफ चेंज ही विल मेक अ चेंज एंड ही विल शो मी डाउन कि यार तुमने ये गलती कर दी, ये गलती सुधारो. इट मे बी वेरी इनसिग्निफिकेंट बट ही विल स्टिल वांट टू हैव द अपर हैंड. Yes. So not only are these speed breakers, but there looks like people who put a lock on the door Yes. Yes. from which you are supposed to leave, or Mhm. the door from which you're supposed to enter into your brilliant future or great. So, two questions. One, did you also encounter things like this? If yes, how did you face it? Two, if you have not encountered, does this happen in the industry? And if yes, on a larger level, how do you suggest ये जो हमारे युवा हैं, ये जो युवतियां यहाँ हाँ जी, हाँ जी. उनको ये सब चीजों का कैसे सामना करना चाहिए? क्योंकि कॉलेज जो है उनको ड्राइविंग सिखाती है स्मूथ रोड पे. Yes. रोड में गड्ढे होते हैं ना, लाइक Yeah. famous saying about Pune that in entire India we drive on the left of the road. Yeah. Pune we drive in what is left of the road. Correct है. No, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो स्टार्टिंग की लाइफ में स्ट्रगल होता है, एक बार नाम हो गया फिर तो काम मिलता है और दाम भी मिलता है. Yes. लेकिन ये जो शुरुआत में ये जो स्ट्रगल होता है, इस समय क्या करना चाहिए, कैसे आपने किया, दूसरे सक्सेसफुल लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताओ ना. सर पॉलिटिक्स तो यस डेफिनेटली होता है. और मैंने मेरे साथ भी हुआ था, मतलब ऐसे काफी बार. सो बेसिकली व्हेन समबडी ट्राई टू डू अ पॉलिटिक्स विद यू, या आपको अगर दबाने की कोशिश करता है, तो बस आप में इतनी ताकत रखें कि भाई वो दबा ना सके आपको. ठीक है. नाउ टू ब्रीफ दिस स्टेटमेंट कि दबा ना सके, तो आपके पास you should have lot of techniques, tricks. उसके लिए आपको आपका डेटाबेस, आपकी पढ़ाई, आपका होमवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए. Now, since I'm working in a creative industry, there are million ways to achieve one particular object, one particular aim or goal, or to accomplish your task. Now, how I used to tackle this? Now, जैसे अभी आपने rightly बताया कि उसने बस मैथ थोड़ा सा चेंज करने के लिए नाम के लिए 2-4 बटन इधर उधर दबाई एंड सी दिस इज हाउ इट लुक्स. सी जब आप कॉन्फिडेंट होते हो ना आपके काम में कि हाँ यार जो मैंने किया हुआ है दैट्स एब्सोल्युटली बैंग ऑन टारगेट, बुल्सआई, फिर जो सामने वाला जो आपको आके बताता है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, आई एम श्योर वो उसके मुंह पे गिरने वाला है. बिकॉज ही इज डेविएटिंग हिमसेल्फ एंड यू टू हिट द बुल्सआई. तो उसका वो 0 पे नहीं लगेगा, उसका प्रोबेबली 10 पे लगेगा, विच इज द आउटर सर्कल ऑफ बुल्सआई. राइट. सो बट आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो कॉन्फिडेंस है. आई एम श्योर यू विल नॉट फॉल in that category to be get bullied by your seniors by the name of politics and all. So whenever I used to work, एक होमवर्क होता है, right? तो वो होमवर्क आपका होना बहुत जरूरी है. ब्लाइंडली कहीं पे भी मत जाए आप. अगर आप ऑफिस में भी जा रहे हो, आपको पता है कि मुझे ये चीजें करनी है, होमवर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, थिंकिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट when you want to achieve. अगर ये आपके पास है, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, बट शायद ये नहीं हो पाएगा आपका. एंड हाउ टू आई मीन अगर कॉर्पोरेट में there are millions of heads, right? There are millions of people who wants to suggest you. There are good people, there are bad people. अगर कोई आपको बोलता भी है कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करके देख, एंड इफ ही इज ट्राइंग टू टेक योर क्रेडिट, भाई लेके जा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, तेरे को लेके जाना है ना, मैं खुद देता हूँ तेरे को, ले भाई ये क्रेडिट ले और पकड़. सामने वाला डेफिनेटली उसको क्वेश्चन पूछने वाला है कि ये तूने कैसे किया. उसको वो पता नहीं है. He had to take the person's name जिसने ये किया हुआ है. Okay. Right. So this लेके जाना है यार, लेके जा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. And there is a real life example. I was reading a book of
मिस्टर स्टीव जॉब्स, उन पे कुछ लिखा है, तो देयर आर सर्टन फ्रेजेस उन्होंने यूज किया, वो बुक में वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्रेडिट ले, थैंक यू में अगर कोई चीज मांग रहा है ना, लेके जाए यार, कोई प्रॉब्लम That's नहीं है। very एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय दोस बुक्स। yeah. ऐसे नहीं कि ये मेरी मनगढ़ंत कहानियां हैं, दे वो प्रूवन है। So final two questions for you, Mangesh. प्लीज प्लीज। One very beautiful question that has come from Abhishek. What's your opinion on overtime work culture, especially in VFX department, which affects the artist's health and family life? See, Abhishek, right? Yeah, Abhishek. Yeah, Abhishek, this is for you precisely. See, overtime आपको तब करना होता है जब वो जरूरत होती है। सी, ओवरटाइम हर इंडस्ट्री में है, ना कि सिर्फ वीएफएक्स में है, हर कंट्री में है, ना कि सिर्फ इंडिया में है, ना कि सिर्फ पुणे या मुंबई में है, ओवरटाइम हर जगह पे है। सी, आपको ओवरटाइम तब करना पड़ता है व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन योर प्लान। आपको आपका प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अगर वीएफएक्स, मतलब मैं सिर्फ वीएफएक्स की बात करता हूँ, कि आपको एक टास्क दिया गया है कि आपको एक एक 3D मॉडल बनाना है। अज्यूमिंग कि आपको आपके सामने जो माउस पड़ा हुआ है उसका एक मॉडल बनाना है, जो आपके सीनियर्स को लगता है कि 8 घंटे में बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वैसे मॉडल जिंदगी में बहुत बनाए हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। ओके, तो जब आपको बताया जाता है कि आपको मॉडल बनाना है, तो देन यू नीड टू स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग्स कि Wow. हाँ, ये एक्चुअली अचीवेबल है, अगर है तो कैसे अचीवेबल है। यू नीड टू सेट योर माइलस्टोन कि पहले 2 घंटे में मैं इसका एक लो पॉली मॉडल बनाऊंगा, दूसरे 2 घंटे में प्रोबेबली वो लो पॉली का मैं हाई पॉली बनाऊंगा, then I'll go to some advanced level where I'll add some kind of detail, okay, and after जब आप डिटेल ऐड करते हो तो कीप अ बफर ऑफ 2 hours टू सी फॉर योर ओन मिस्टेक्स कि हाँ यार, ये मैंने किया है, नहीं किया है, हैव आई अचीव्ड। तो आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, if your answer is yes, done. If your answer is no, you have got yet 45 to 1 hour आपके पास और है, rectify it and then give it a shot. तो आपका जो प्लानिंग है वो इम्पोर्टेंट है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर टाइम बुरी चीज है या आपका खाना पीना सब छोड़ के आपको घुसे रहना है वहां पे, नहीं, मतलब प्रिसाइजली मैं मेरे टीम को ये कभी नहीं सजेस्ट करता हूँ कि आप ओवर टाइम करें, बट अगर जरूरत पड़ती है तो मेरे भाई अपने को करना पड़ता है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं तो यार कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यार अपने को, सर्वाइव टू वर्क, वो सीखने के लिए मिलता है। Awesome. Yeah. Mangesh, what I learned from what you are saying is, and please tell me if I'm on the right path of thinking. Yeah, please, sir. When I am a beginner, when I am not an expert yet, there is a level of efficiency which is expected for the profitability for projects to happen. Yes, yes, yes. So the boss, he has done it a million times in 8 hours. So he expects कि 8 घंटे का काम है 8 में करो. अभी मैं काबिल नहीं हूँ उसके. तो इसके लिए शायद मुझे 9 घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे, 14 घंटे लगेंगे। तो 2 तरीके हैं सोचने के। एक, मैं सोच सकता हूँ कि यार मैं बहुत ओवर टाइम कर रहा हूँ। दूसरा, मैं ये देख सकता हूँ कि यार दिख रहा है कि मेरे में 50 to 70% इनएफिशिएंसी है। तो इस प्रोजेक्ट से शायद 10% एफिशिएंसी बनेगी। 5 बार करूंगा तो शायद जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वहां तक पहुंचूंगा। फायदा ये कि जब मैं वहां पहुंचूंगा, आज अगर मुझे 50,000 रुपए मिलता है, वहां पहुंचने के बाद मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा। यस। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नॉट अगेंस्ट मी कि मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। यस। कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है, कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है अपने आप को डेवलप करने का। वहां कोई राक्षस नहीं बैठा है जो तुम्हारा हानि करना चाहता है, तुमको परिवार से दूर रखना चाहता है, तुमको सोने नहीं देना चाहता है। लेकिन यह एक काम की बात हो रही है, और काम ये सब कॉम्प्लिकेटेड है। एक जन कोई अपने को काम दे रहा है, उसका अपना बॉस है, मूवी में एक डायरेक्टर है, वहां पे एक प्रोड्यूसर है, यहाँ पे एक टीम है, बॉस की एक एक्सपेक्टेशन है। मतलब ये थोड़ी खिचड़ी है, और इस खिचड़ी में अपना एक रोल है। रोल में अगर सेल्फ सिंपैथी में घुस गए, क्या मेरे से बहुत ज्यादा काम करा रहे हैं। आई लव व्हाट यू सेड दैट ईदर रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट टू यू और सेल्फ सिंपैथी इज इंपॉर्टेंट टू यू, दोनों नहीं मिलेगा। हाँ, डिसाइड
bang on target. सेल्फ सिंपैथी है कि मैं टारगेट हूं, तो भाई रिजल्ट्स नहीं मिलेगा लाइफ में, क्योंकि Right. दुनिया में किसी को तुम्हारे सुख दर्द में कोई इंटरेस्ट नहीं, लोगों को इंटरेस्ट है रिजल्ट्स में, Right. और टीम साथ में आती है एक बड़ा रिजल्ट लाने के लिए। Right. वहां पर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे मेरे लाइफ के कन्वीनियंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करे, ये होता नहीं है, ये हो पाएगा नहीं। Yes. Do not look at overtime just as overtime and a burden and self-sympathy, but look at it as a proof of scope of growth. Yes, of course. Of course. Take it up like Mangesh did, where you listen, where you hear, where when you watch, where you observe, where you read and you learn. Then there is a time when you don't have to do work. You have to coordinate. You have to ideate, strategize. Exactly. Then overtime is not required. Exactly. मतलब आज की डेट में मुझे ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई नो कि मैंने बहुत किया हुआ है। आई लर्न दोस थिंग्स। मतलब लिटरली दोस डेज व्हेन आई वाज इन मुंबई, अ स्मॉल टाइम स्टूडियो वेयर हम लोग को काम करना पड़ता है लिटरली डे एंड नाइट। आई यूज्ड टू बी देयर। सो वहां पे सीखने के लिए बहुत मिला है। Brilliant. दिस ये सीख आपको वहां तक लेके जाएगी जहां पे आपको ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज नाउ आई एम गिविंग a good quality time to my family, good quality time for my own growth, my reading, my biking, मेरे जो hobbies है sports. Yes, I'm doing that. Yes, I'm doing that. But आपको कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा वहां पे, and Brilliant. इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास टाइम है, उसके अलावा नहीं और कुछ। Awesome. That's an extraordinary answer. आज के दिन इन्वेस्ट करने के लिए अपने पास अपना टाइम है, और That's it. उससे अगर अपने को ग्रोथ मिल जाए, तो that is the smartest thing that we can do with our life, right? Yeah. One very short question, and give me an answer in less than 1 minute if possible. Which is your favorite project and why? Okay. Sir, basically what you are asking is which is your favorite child to a mother? अगर उसको 2-3 बच्चे हैं, which is your favorite child? Everything is. But off lately, fulfillment ज्यादा होती है ना? नहीं लगता है कि यार ये मतलब लाइफ का एक बहुत अच्छा चीज किया करके। Thanks. Exactly. So my favorite project was Amazing Spider-Man when I was back there in Mumbai. So I was with Reliance Media Works at that time, and that project favorite इसलिए है, first it was a Marvel project. हाँ. Second, it was my favorite character, which is a Spider-Man, जिसको पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूँ। एकदम. एंड हाँ, मतलब कॉमिक्स तो बहुत पढ़ता था। मतलब ज्योग्राफी के बुक में वो कॉमिक्स डालता था एंड टू रीड इट। दैट्स द ओनली बिग बुक यूज्ड टू कम एट माय एज। बाकी सारे छोटे छोटे होते थे हाफ। सो दैट्स द ओनली। सो दीज आर द टू रीजंस। एंड सेकंड, the people with whom I was interacting were so advanced with respect to the technology that gave me a lot of information, that gave me a lot of knowledge, which I'm using it now. क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो जो process था was phenomenal, was phenomenal. And second project was Gemini Man, which off lately 2019 released of Mr. Will Smith. So 50-year-old Will Smith versus 25-year-old Will Smith. तो दोनों को आमने सामने खड़ा करना है। ऐसा नहीं कि बॉडी डबल हमने वहां पर रखा हुआ है। एंड टेक्निकल टर्म्स में जाना चाहूंगा, वो जो मूवी शूट हुआ था वो 120 FPS पे शूट हुआ था। एंड द डायरेक्टर वाज मिस्टर एंगली, लाइफ ऑफ पाई के जो डायरेक्टर है। द VFX सुपरवाइजर वाज मिस्टर गे विलियम्स। तो उसके साथ जो सीखने के लिए मिला, सो वाज अमेजिंग। So I hope it's 1 minute some seconds, but it's okay. I hope you digest that. You know what, Mangesh? It's an interesting way to end our conversation. Will Smith in an interview once said, I don't believe in plan B. I don't believe in plan B. Yeah. कभी भी लाइफ में प्लान बी बनाता ही नहीं हूँ। सर मतलब आप अगर एग्जांपल लेंगे, I've read Mr. Jobs, I've read Kalam, I've read I've seen the movie The Pirates of Silicon Valley. इन सारे मूवीज में एक चीज सर कॉमन जो मुझे दिखी, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ बिग ब्रेनर और समथिंग, तो मुझे लगा कि यार इन लोग के पास कभी प्लान बी था ही नहीं।
बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट बनाना है, उसने धर दिया माइक्रोसॉफ्ट। हाँ हाँ उसके हाँ पास वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऐसा कोई प्लान नहीं था, उसको बस ओएस बनाना है लाइफ में, उसने बनाया एंड ही इज देयर। yeah, yeah. Mangesh, thanks a ton. It has been so marvelous to speak with you. Uh, सही। I'm sure यहाँ जितने भी हमारे दोस्त हैं ना, हाँ, इन उनको रियल लाइफ में क्या होता है, एक क्रिएटिव फील्ड्स में कैसे घुसना चाहिए, काम को किस श्रद्धा से देखना चाहिए, ये सब चीजें उनको बहुत सीखने को मिली होंगी। यस, कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कौन सा वीएफएक्स का सॉफ्टवेयर बेस्ट है वगैरह वगैरह, वो हाँ, मैंने नहीं लिया क्योंकि वो सिर्फ एक छोटे से सेक्शन के लिए है और वो गूगल करेंगे तो मिल जाएगा उनको। एग्जैक्टली। जो चीज हमको गूगल में नहीं मिलती है, हमको मंगेश से वो निकालना था। Thank you so much for digging out so much things from me, and I seriously appreciate the way we are talking. I was not think, I mean, honestly, I was like little nervous. यार क्या होगा आगे? I was like बात कर रहे हैं. We are all okay. This is a day to day. So even your question was so touching and well framed and so short and simple. I was like, yeah, my one of my close friends is asking this. हाँ ये है चलो. ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच मंगेश, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you. May very soon your name appear in the first 1 or 2 slides in a movie. That's my goal. और सर जाते जाते ना जिस बंदे ने क्वेश्चन पूछा विच इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर ऑन अ क्विक 30 सेकंड, सी डोंट ट्रस्ट ऑन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आर जस्ट अ टूल्स, राइट? आप माया यूज करो, माया यूज मैक्स यूज करो, माया करो, न्यूक करो, फ्यूजन करो, डजंट मेक एनी सेंस. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर हियर. इट्स जस्ट अ टूल, उनकी औकात उतनी ही है. So that's the only thing which I would like to tell to the respected person who just question this thing. So don't believe on software. वो यहाँ पे होता है. So trust this software. Trust this. Open your walls. Brilliant, brilliant. Thank Yeah. you so much, Mangesh. It was such a pleasure, and I look forward to meeting you very soon. Even so do me. Sure, chalo. Bye. Yeah. Love you. Thank you, sir. Bye-bye. Bye. See you. Bye. See you.